Greetings, children. Welcome to today's video lesson. Students, we have been reading The Lost Child by Mulkraj Anand. Students, yesterday we started this chapter, and what did we read? What we have read up to now is that the villagers they are going to the festival of spring and they are going to a fair. And children, there is this little boy who is very excited, who's very happy to see all the things around him, and he is now requesting his parents to buy a toy. But his parents, what they do, his father looks at him red eyed, and his mother tries to divert his attention by showing him something else. Alright, so students, today we are going to start from a group of dragonflies. Okay, so a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. So, dragonflies you might have seen, they are insects who fly, right? And they were bustling about. Bustling about means they were moving on very quickly. Okay, they were changing their positions very quickly because that's how dragonflies they move on their gaudy purple wings. So the color of wings, what was it? Purple colored wings were there, and gaudy means ornamental. गॉडी मीन्स ऑर्नामेंटल की जैसे एक ऑर्नामेंट हो. ओके, सो हियर द विंग्स आर कंसिडर्ड एज ऑर्नामेंटल, कि विंग्स इतने सुंदर थे जैसे कि वो कोई ऑर्नामेंट हो. सो ऑर्नामेंट लाइक आभूषण, कोई ज्वेलरी टाइप हो. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी. Okay, so what were the dragonflies they were doing? They were intercepting. Intercepting means coming in the way of. They were coming in the way of a lone black bee. Lone means one. Okay, a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. सो ब्लैक बी और बटरफ्लाई वो किसकी सर्च में थे? स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. लाइक यू नो हाउ दे कलेक्ट नेक्टर. NECTAR. हनी कैसे बनता है? बीज दे कलेक्ट नेक्टर. सो दिस इज व्हाट bees and butterflies they do. The child followed them in the air with his gaze. सो जो वो बच्चा था अब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया. पहले वो क्या मांग रहा था? ही वॉज आस्किंग फॉर द टॉय. ही वॉज आस्किंग फॉर द टॉय, बट नाउ ही इज डिस्ट्रैक्टेड एंड ही इज फॉलोइंग द बटरफ्लाई in the air with his gaze. Gaze means देखना. Okay, एक constantly देखना. Till one of them would still its wings and rest. Still its wings means कि अपने wings को वो रोक लेगी. ओके, और वो रेस्ट करेगी, वो मूव नहीं करेगी. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और वो फिर बच्चा क्या करेगा? द चाइल्ड ही वुड ट्राई टू कैच द dragonfly, but it would go fluttering. बट क्या हो रहा था? जब वो बच्चा कैच करने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की ड्रैगन फ्लाई को, वो चली जाती है. ओके, फ्लटरिंग मीन्स टू मूव इट्स विंग
वेरी क्विकली. ओके, जिससे वो तेज तेज आवाज भी आती है ना, दैट इज द मोशन. फ्लैपिंग, फ्लटरिंग, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर. सो अपने विंग्स को बहुत तेज हिलाती है. और फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना. ओके, कि बहुत ही ज़्यादा तेज. अप इनटू द एयर, और उड़ जाती है ऊपर. फटाफट से वो उनको हिलाते हैं और फिर बहुत तेज फड़फड़ाते ताकि वो उड़ सके. When he had almost caught it in his hands, कि जब उसने उनको बिल्कुल पकड़ ही लिया होता है तभी वो जस्ट उसी टाइम पे उड़ जाती है. Then his mother gave a cautionary call. फिर उसकी मदर ने एक वार्निंग कॉल दिया. कॉशनरी मीन्स वार्निंग. ओके, एक वार्निंग कॉल दी. कम चाइल्ड, कम ऑन टू द फुटपाथ. ओके, सो उसकी मदर ने उसको वार्निंग की टोन में एक बुलाया कि यस कम चाइल्ड. और ये जो फुटपाथ, फुटपाथ क्या होता है? जिस पे जो पैदल लोगों का रास्ता होता है. ओके, सो उस पे बुलाया. वाई? बिकॉज, और इफ यू will observe this, why the parents they are taking care, because they don't want the child to get lost. Okay, parents they are doing their duty and trying to ensure, parents कोशिश कर रहे हैं कि child खो ना जाए. Okay, moving on. He ran towards his parents gaily. गेली मीन्स हैप्पीली, विद हैप्पीनेस. वो अपने पेरेंट्स के पास खुशी खुशी भाग जाता है. एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल. वॉकड अब्रेस्ट मीन्स पैरेलल चलना, साथ में चलना. ओके, थोड़ी देर उनके साथ में चलता है. फॉर बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड. बट वो थोड़ी देर बाद फिर से छूट जाता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath. ओके, सो पहले वो क्या होता है कि अब वो चल रहा है पेरेंट्स के साथ में ही, लेकिन फिर से वो पीछे छूट जाता है. वाई? बिकॉज ही इज अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms. उसको किसने अट्रैक्ट किया है? लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms, जो कि फुटपाथ के साथ में ही निकल रहे हैं. दैट वर टीमिंग आउट. टीमिंग आउट मीन्स कमिंग आउट इन अ लार्ज नंबर. ओके, वो बहुत लार्ज नंबर में अपने हाइडिंग प्लेसेस ओके से बाहर आ रहे थे. So that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो बहुत ही लार्ज नंबर में जो उनके छुपने की जगह होती है, जो उनके रहने के लिए उनके होल्स होते हैं, उनसे बाहर आ रहे थे. वाई? सो दैट दे कैन एंजॉय द सनशाइन. ओके, कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove. Again, parents बच्चे का ध्यान रख रहे हैं. पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा उनके साथ में रहे. एंड अगेन दे आर कॉलिंग द चाइल्ड. एंड फ्रॉम वेयर दे आर कॉलिंग द चाइल्ड? फ्रॉम द शेड. शेड मीन्स छाया. ऑफ अ ग्रोव. ग्रोव मीन्स जो वो थोड़े से ट्रीज वगैरह जहाँ पे होते हैं इकट्ठे से, दैट्स अ ग्रोव. वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स. ओके, जहाँ पे वो लोग बैठ गए थे. ऑन द एज ऑफ अ वेल. सो यूजुअली जो ये कंस्ट्रक्शंस होते हैं वेल वगैरह, उसके आसपास पेड़ होते हैं. ही रैन टूवर्ड्स देम.
ओके, सो अगेन पेरेंट्स ने बैठकर वेल के एज पे बैठकर चाइल्ड को बुलाया. ओके, और वो जो चाइल्ड था वो भी आ गया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. So फूलों की एक बारिश सी हुई उस पे. Shower is here referring to uh, a little rain. Fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. So अब क्या हुआ है? See, now he has forgotten his parents. वो अपने पेरेंट्स को भूल गया है. Okay, forgetting means भूल जाना. He began to gather the raining petals in his hands. वो क्या इकट्ठा कर रहा है? Gather means इकट्ठा करना, to assemble. The raining petals. Petals means जो flowers की पंखुड़ियाँ होती हैं, we call them petals. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents. But suddenly क्या होता है? He hears the cooing of doves. जैसे white color के जो pigeons होते हैं, हम उनको क्या बुलाते हैं? Doves. ओके, सो उसे doves की cooing, जो वो sound बनाते हैं, that's called cooing. And ran towards his parents. वो अपने पेरेंट्स की तरफ फटाफट से भाग जाता है. और वो क्या चिल्लाता है? He's shouting, the dove, the dove. So now his attention has shifted from the raining petals to the dove. Okay, the raining petals dropped from his forgotten hands. So जो raining petals हैं वो उसके हाथ से छूट जाते हैं, वो उसके हाथ से गिर जाते हैं. ओके, सी हियर it is written forgotten hands. What is the meaning of this phrase forgotten hands? कि अगर उसके हाथों को याद होता. See, we always talk about this concept of muscle memory, कि हमारी बॉडी को कुछ एक्शंस करने याद रहते बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी. ओके, सो द राइटर हियर ही हैज स्टेटेड कि जो मसल मेमोरी थी वो वैनिश हो गई. जो हैंड्स थे जिन्हें ये याद रहना चाहिए था कि हाथ के अंदर फ्लावर के पेटल्स हैं, वो ये सब भूल गए. ओके, सो this is the meaning of forgotten hands. Students, we are going to read till here only. In this part, if you have any questions, please let me know in the Kaizala app. Okay, that's it for now. Thank you.